A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new question of class 12th accountancy. You know very well in the last few videos we discussed the practical problems related to the chapter number 7 accounting for share capital, issue and forfeiture. In the last few videos we discussed the questions related to the oversubscription and forfeiture of the share. Now we will move to the next topic of this question, this chapter. So in this type of the question, you can see that premium are called with each and every cause. As you can see the question number illustration number 61. So you can find that on application you can see that 4 rupees per share including 2 rupees premium, on allotment 6 rupees per share including 3 rupees premium, on first call 5 rupees per share including 1 rupees premium. So this is a new type of the question in which you can see that premium amount called by the company in each and every calls. So in this types of question, how we will solve, how we will treat such types of question, let's we discuss it. So for the creating a better understanding towards this types of question, now we will move to the illustration number 61. It is also a questions related to the oversubscription as well as premium with application, allotment, first call and final call, as well as you can see that calls in arrears and then calls in advance, and thereafter we are talking about the forfeiture and reissue of the share. So we start the today's question without taking any delay. So uh, let's go the illustration number 61. As you can see the illustration number 61, VXN Limited invited application for issuing 50,000 equity share of rupees 10 each at a premium of 5 per share. यानी कि एक कंपनी है जिसने कितने शेयर इश्यूज किए, टोटल 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए एंड जिसमें से एक शेयर की जो वैल्यू है वो है दैट इज 10 रुपीज, जिसपे 8 रुपए का प्रीमियम है. 10 rupees का शेयर है with 8 rupees premium. So the total value of the share is 80. 10 rupees for share and 8 rupees for the premium. On application 4 per share, out of which you can see that application पे 4 rupees कंपनी ने डिमांड की है, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम है, लिखा है ना ऑल्सो इंक्लूडेड 2 rupees प्रीमियम. तो 2 rupees शेयर का हो गया और 2 रुपए किस चीज का हो गया, प्रीमियम का हो गया. On allotment you can see that 6 rupees per share, 3 rupees प्रीमियम है. सो द 3 rupees किसका होगा, शेयर का, एंड 3 rupees फॉर द प्रीमियम. नेक्स्ट फॉर फर्स्ट कॉल, on calls, on first call you can see that in this question there are basically two calls, on first call and second one is a final call. तो फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स हैं, कितनी रुपीस हैं, दैट इज 5 इंक्लूडिंग 1 पर शेयर. तो 1 रुपीस प्रीमियम हो गया एंड 4 रुपीस शेयर का हो गया. एंड बैलेंस कह रहा है फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे क्या है बैलेंस. सो यू कैन टोटल इट 6 to 4 10 10 and 5 15, टोटल वैल्यू कितनी 18. सो वैल्यू कितनी बची 3. तो 3 रुपीज फाइनल कॉल पे डिमांड किया है, जिसमें से यू नो वेरी वेल कि प्रीमियम कितने हैं 2 3 4 5 एंड 6, टोटल प्रीमियम कितना है 8. तो 2 रुपए प्रीमियम का हो जाएगा और 1 रुपए किसका हो जाएगा, शेयर का हो जाएगा. आप ऐसे भी टोटल कर लो, 3 to 5 4 9 1 10, 10 रुपीज शेयर का हो गया, 3 to 5 6 7 8, 8 रुपीज प्रीमियम का हो गया, और टोटल ऐड कर लो तो 18 आना चाहिए. 6 to 4 10 10 5 15 3 18. So you can see that the value distribution on application allotment 5 rupees on first call and 3 rupees on final call. So this is the basic introduction of this question. And now question क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत सीधा साधा लग रहा है, बस इतना लग रहा है कि हाँ हर जगह आपको क्या देना है, प्रीमियम पे करना है. एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे भी है, फर्स्ट कॉल पे भी है, फाइनल कॉल पे भी है. और ये मैंने क्वेश्चन चूज किया है फॉर द ओवर सब्सक्रिप्शन. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन. इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन सेज दैट द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया. और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इज दैट
गोपाल अ शेयर होल्डर शेयर मनी along with the allotment money, यानी लिख रहा है the issue was fully subscribed. Gopal, a shareholder holding 200 shares, did not pay the allotment money, and Madhav, a holder of 400 shares, paid his entire share application along with the allotment money. बहुत ही इजी क्वेश्चन, यू कैन सी दैट। कह रहा है इशू फुली सब्सक्राइब हो गया और उसके बाद लिखा है शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर था, ओके, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और माधव था जिसके पास कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ ही अपना सारा पैसा दे दिया, यानी कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। लिखा हुआ है गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के बाद ही गोपाल के शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, तो पहले मैं एरियर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ होगा, यू नो वेरी वेल। एरियर ऑन अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, एरियर ऑन अलॉटमेंट इज calls in area, so calls in area on which share, कितने शेयर हैं, 200 शेयर, गोपाल है, गोपाल, ओके, कितने शेयर थे उसके पास, हाउ मेनी शेयर्स, ही हैव 200 शेयर, उसके पास 200 शेयर थे, उसने एरियर कर दिया। कहाँ कौन सा पैसा नहीं दिया होगा उसने, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का कितना रुपीज है, 6 रुपीज, यानी 1800 रुपीज, दैट इज अलॉटमेंट, सॉरी, और एरियर ऑन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट पे एरिया निकल गया। और दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इज एन एडवांस। एडवांस कितना कह रहा है क्वेश्चन में, दैट इज कि जो एक बंदा था जिसका नाम क्या था, माधव, जिसके पास 400 शेयर था, पेड हिज एंटायर शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर मनी विथ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के बाद कितना पैसा मांगना था, 5 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, तो टोटल कितना बना, 8 रुपीज। सो उसने एडवांस कर दिया होगा। सो कॉल्स इन एडवांस कितना होगा, कॉल्स इन एडवांस विल बी, दैट इज किसने एडवांस किया है, नाम क्या है उसका, द नेम ऑफ द शेयर होल्डर माधव, और माधव ने, उसके पास टोटल 400 शेयर्स हैं और उसने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया। 400 शेयर ना, यस, 400 शेयर, और उसने टोटल आने वाला सारा पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का कितना दिया, 5, और फाइनल कॉल का कितना दिया, 3, तो टोटल कितना रुपीज दे दिया, 8 रुपीज, दैट इज 3200 उसमें एडवांस दे दिया। किस पे दिया उसने, ऑन अलॉटमेंट। सो यू कैन सी दैट अलॉटमेंट पे क्या है, दो चीजें हैं, अलॉटमेंट पे आपका एरियर भी है और अलॉटमेंट पे एडवांस भी है। इस 8 रुपए में 5 रुपए फर्स्ट कॉल का है और 3 रुपए किसका है, फाइनल कॉल पे। ये भी याद रखिएगा, 3200 में जो 8 रुपीज से मैंने मल्टीप्लाई किया उसमें 5 रुपीज यानी 2000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर कर लें तो यू कैन सी दैट इसमें 3000 रुपीज जो 3200 रुपीज में 2000 रुपीज फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल का एडवांस है, और 1200 रुपीज फाइनल कॉल का एडवांस है। ओके, सो ये बेसिक सी चीज है, यू नो वेरी वेल। अब हम लोग एंट्री पास करते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉरफीट के उसके बाद फॉरफीट करके क्या करना है, आफ्टरवर्ड द फाइनल कॉल वाज मेड, कृष्णा ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, गिरधर द होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। यानी बहुत सारा इसमें अभी आपको मेहनत करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो आप इस क्वेश्चन को पहले जितनी जनरेटरी मैं कह रहा हूँ उतनी पहले जनरेटरीज आप तो कहाँ तक पास कर लेते हैं, अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट पे एरियर कर लेते हैं, एरियर के बाद उस पर एडवांस कर लेते हैं, और उसके बाद शेयर को फॉरफीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फर्स्ट कॉल में लिखना है। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है, आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर, यानी कृष्णा जिसके पास 100 शेयर था वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, गिरधर जिसके पास 300 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, तो कृष्णा के शेयर को भी फॉरफीट करना है। फर्स्ट कॉल के बाद फिर सेकंड कॉल का भी पैसा आपको मिलेगा, और सारे फॉरफिटेड शेयर को आपको 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू करना है। तो देखने में क्वेश्चन काफी लेंथी है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यू विल फाइंड दैट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो पहले हम लोग कहाँ तक की एंट्री पास करते हैं,
बिफोर द, यस, हम लोग अभी एंट्री पास करते हैं टिल द अलॉटमेंट एंड द आफ्टर फॉरफीचर। सो उसके लिए मुझे ये क्वेश्चन यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। So we pass the first entry. The first entry is bank account debit to share application. Please pass all the entries in the proper format. Okay? ऐसा नहीं कि मुझसे सीखे, मुझसे एंट्रीज करना सीखे, बट द फॉर्मेट आपको बनाना है। सो प्लीज लिसन केयरफुली। तो आपको एप्लीकेशन कितने पे मिला? 50,000 शेयर पे 4 रुपीज के हिसाब से। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 2 लाख। एप्लीकेशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट application, after application you will transfer the application money to the where share capital, but watch carefully, you know, you don't know कि आपको पता भी है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि इसमें 2 रुपए शेयर का है, 2 रुपए प्रीमियम का है। सो जब ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम नोट डाउन करना। तो एप्लीकेशन की टोटल वैल्यू कितनी है? 2 लाख, और 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 1 लाख कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। एंड 1 लाख कहाँ जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ओके, सो दिस इज द एंट्री रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा वर्क बढ़ता है। वर्क वो क्या है? वो है एरियर और एडवांस को एडजस्ट करना। एरियर एंड एडवांस में मैंने आपको एकदम बताया था कि जब आप एंट्री नंबर 3 करोगे तो एंट्री नंबर 3 में आप फर्स्टली यू विल कॉल द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कॉल करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सो यू नो वेरी वेल। यहाँ पे आप देखो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी बनी? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 3 लाख रुपीज आपकी क्या होगी? टोटल अलॉटमेंट मनी, आउट ऑफ विच 3 रुपीज फॉर रिलेटेड टू द शेयर एंड 3 रुपीज फ्रॉम द प्रीमियम, यानी कि 1,50,000 रिलेटेड फ्रॉम द शेयर एंड 1,50,000 रिलेटेड फ्रॉम द प्रीमियम। सो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। एंड यू कैन सी दैट ये मैंने एंट्री पास की, ये पास की, और फिर ये। अब मैं जब अलॉटमेंट रिसीव कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 काम हो रहा है। एरियर भी हो रहा है 1800 का, यानी गोपाल जिसने एरियर भी किया हुआ है 1800 का, और एक माधव है जिसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दिया हुआ है। तो आप चाहो तो अलग अलग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, बट मैं आपको ये सिक्योर कहूंगा कि कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट भी ओपन करिए, एरियर अकाउंट भी ओपन करिए। तो एंट्री नंबर 4 में यू नो जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, मैंने लिख दिया क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल कॉल्स इन एरियर क्या होता है? डेबिट होता है, और एडवांस क्या होता है? क्रेडिट होता है। दोनों में डिफरेंस यही है, एरियर एंड एडवांस में डिफरेंस आपको पता ही है। सो यू कैन सी दैट द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, दिस इज एन एरियर। ओके, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 2 कॉल्स इन एडवांस। ओके, एंड नाउ अलॉटमेंट कितना था? 3 लाख रुपीज। तो अलॉटमेंट के सामने आप 3 लाख लिख दो। लिख दिया सर? ओके। एंड नाउ यू नो वेरी वेल एरियर कितना हुआ था? गोपाल ने एरियर किया था। कितने शेयर पे एरियर किया था? 200 शेयर पे। और जब 200 शेयर पे एरियर हुआ था तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी टोटल एरियर कितना हुआ था? सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक। 200 multiplied by 6 that is 1200. Okay, so this is the area on 1200 on allotment पे area कितना हुआ? 1200। and thereafter you can see that advance कितना मिला था? 2000 for first call and 1200 for the final call. Total advance is 3200. So you can see that आपको कितना पैसा मिला होगा? 3 lakh plus 3200 minus 1200 equals to 3 lakh 2000. So this is the entry related to the application. Thereafter application will be transferred to the share capital and as well as to the security premium. Thereafter we called allotment, and after that you will find that कि मैंने क्या किया? allotment पे आपको एरियर भी हुआ है, एडवांस भी हुआ है।
सो आप लोग यहां तक पहले कॉपी कर लो, अपनी कॉपीज में इसको कॉपी कर लो विथ अ प्रॉपर नोट्स, स्टार्टिंग नोट्स विथ अ वर्किंग नोट एंड देयर आफ्टर द जर्नल एंट्री। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा था, अलॉटमेंट के बाद ही आपको गोपाल के शेयर को फॉरफीट कर लेना है। क्या कर लेना है, गोपाल के शेयर को फॉरफीट कर लेना है। एंड यू नो वेरी वेल, जब हम फॉरफीट करते हैं तो यू कैन सी दैट अलॉटमेंट, गोपाल ने क्या नहीं दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया था। एंड यू नो वेरी वेल, इस क्वेश्चन में हर जगह प्रीमियम है, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, यहाँ हर जगह प्रीमियम है। तो उसका मतलब जब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, ठीक है, when we pass the entries related to the forfeiture, you know very well कि forfeiture जब भी होगा तो दूसरे कंडीशन से रिलेटेड forfeiture होगा। इट मींस when premium amount is not received. So entry number 1, 2, 3, 4 is very clear, and now we will move to the entry number 5th. What is entry number 5th? That is a forfeiture, and forfeiture की कौन सी entry होगी, when premium amount is not received. Yes, so the entry will be share capital account debit, security premium account debit, 2 calls in arrear and 2 share forfeiture. फॉरफीचर आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है। मुझे लग रहा था कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर फॉरफीचर पहले लिखना चाहिए एरियर बाद में, ऐसा कुछ नहीं, आप एरियर पहले लिखो, फॉरफीचर बाद में लिखो, बट अमाउंट सही लिखना है आपको। सो दिस इज द एंट्री रिलेटेड टू द फॉरफीचर। किसके शेयर को फॉरफीट करना है सर, वही गोपाल जिसने 1200 रुपीज अलॉटमेंट पे नहीं दिया। सो यू नो वेरी वेल, उसके पास कितने शेयर थे, उसके पास टोटल 200 शेयर थे, और 200 शेयर पे मैंने अभी डिमांड कितना किया था, ये वर्किंग समझिएगा। वी कॉल्ड ऑन शेयर, शेयर का कितना पैसा मैंने उससे डिमांड किया था, 3 + 2। अलॉटमेंट तक अभी तक कितना कॉल्ड अप किया गया था, 3 + 2 यानी 5 रुपीज शेयर का उससे कॉल्ड अप किया गया था। आपको तो पता ही है कि शेयर कैपिटल के सामने कितनी कौन सी वैल्यू लिखते हैं, इन फ्रंट ऑफ शेयर कैपिटल वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ शेयर विच आर कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कंपनी ने शेयर पे कितना पैसा मांगा है, 5 रुपए, पूरा तो नहीं मांगा ना 10 रुपए, अलॉटमेंट के बाद ही तो उसके शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं, यानी आफ्टर द अलॉटमेंट यू नो वेरी वेल उससे कंपनी ने अभी तक डिमांड कितना किया है, केवल 5 रुपए शेयर का। तो यू नो वेरी वेल शेयर के सामने हम क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर से जितना पैसा भी डिमांड किया गया हो, कितना रुपए डिमांड किया गया, 2 रुपीज शेयर का और 3 रुपीज शेयर का ऑन अलॉटमेंट पे, यानी टोटल 5 रुपीज से डिमांड किया गया। प्रीमियम के सामने क्या लिखते हैं, जितना पैसा प्रीमियम का नहीं मिला। तो आप देख रहे हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही तो मांगा गया है, एप्लीकेशन तो उसने दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो कितना प्रीमियम नहीं दिया होगा उसने, 200 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये प्रीमियम उसने नहीं दिया होगा। यस सर, ओके, यानी 1000 मैंने शेयर का उससे डिमांड किया है, 600 प्रीमियम का नहीं मिला है, द टोटल इज 1600 रुपीज, टोटल वैल्यू इज 1600। एंड यू नो वेरी वेल एरियर कितना हुआ है 1200, उसने एरियर कितना किया है 1200। अब आप खुद काउंट कर लो, 1600 में से एरियर कितना हुआ 200, तो उसका फॉरफीचर वैल्यू कितना आएगा 400, जो बैलेंस वैल्यू बचेगी वो आ जाएगा। सो ये हो गया एंट्री नंबर 5। सो प्लीज नोट डाउन द एंट्री नंबर 5, बिकॉज सारी एंट्रीज की आपको जरूरत पड़ेगी, सारी एंट्रीज की। ओके, नाउ अब क्या करूंगा सर, अब आपको क्या करना है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। फर्स्ट कॉल डिमांड करते हैं, फर्स्ट कॉल पे भी एरियर है, यू नो वेरी वेल। अभी हम लोग जब आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे उसके बाद फाइनल कॉल पे मांगेंगे, फिर उस शेयर को फॉरफीट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं। सो प्लीज आप लोग घबराइए मत, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, 50,000 शेयर इशू किया है और उसमें से 200 शेयर फॉरफीट कर लिया है, यानी कंपनी के पास अब कितने शेयर बचे हैं 49,800। तो कंपनी प्रीमियम कितना मांगेगी, अरे फर्स्ट कॉल कितने में मांगेगी, 49,800 शेयर पे कॉल्ड अप करेगी। तो अब हम लोग उसमें मूव करते हैं, तो उसको आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड बात करेंगे। यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई, अलॉटमेंट पे भी यहां तक क्लियर है, ओके। जो एंट्रीज की मुझे जरूरत है इन फ्यूचर मैंने उसको बचा के रखा हुआ। एंट्री नंबर 4 एंड 5 की जरूरत कब है, एट द टाइम ऑफ रीइशू, रीइशू के टाइम जब मुझे जरूरत पड़ेगी इस एंट्री की, क्योंकि एट द आफ्टर द रीइशू ऑफ द शेयर यू नो वेरी वेल, रीइशू के बाद हम लोग क्या करते हैं,
यस सर, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर इसके बिना तो हो नहीं पाएगा, फॉरफीचर की वैल्यू के बिना। सो यहाँ काम देगा। और ये अलॉटमेंट की वैल्यू इसलिए जरूरत है क्योंकि यू नो वेरी वेल, जो कॉस्ट इन एडवांस ये दिख रहा है 3200, इसमें 2000 रुपीज किसका है, फर्स्ट कॉल का, 1200 किस चीज का है, फर्स्ट फाइनल कॉल का। तो अब हम लोग मांगते हैं नंबर फिफ्थ इज sorry, number 6, entry number 6, that is the entry is related to the first call. Okay, so उसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं। When you see the next topic, you can see that क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा है कि afterwards the final call was made, Krishna, a holder of 100 share, failed to pay the first call money, and Girdhar, a holder of 300 share, paid the second call money along with the first call. यहाँ पे आपको एक वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। सो मैं वर्किंग ये बॉक्स में बना दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना, उसको पहले कॉपी कर लो, ताकि फिर जब मैं जनरल एंट्री पास करूँ तो आप कंफ्यूज मत हो। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमने फर्स्ट कॉल डिमांड किया, तो फर्स्ट कॉल कितने से डिमांड होगी, यू नो वेरी वेल, एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की, इट इज वेरी क्लियर, द एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अब मैंने प्रीमियम क्या किया, फर्स्ट कॉल डिमांड किया 50,000 शेयर पे 4 रुपीज शेयर का है, और 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज किसका है, प्रीमियम का है। सो द वैल्यू इज 5 4 2 lakh एंड 50,000, टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉल इज 2,50,000। जब हमने फर्स्ट कॉल डिमांड किया तो वहां पे एरियर भी हुआ, एडवांस भी हुआ, वहां पे क्या हुआ, एरियर भी हुआ और एडवांस भी हुआ। तो एरियर एडवांस को एडजस्ट करने के लिए यू कैन सी दैट थर्ड शेयर होल्डर का नाम क्या है, कृष्णा। कृष्णा ने क्या किया, एरियर कर दिया, लिखा है ना, कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, यानी एरियर कर दिया इसने, सिंपल सा। तो कॉल्स इन एरियर, कितना एरियर किया होगा, सोचो कितने शेयर हैं उसके पास, सर हु हैव 100 शेयर, तो 100 शेयर पे एरियर कितना बना होगा उसका, 5 रुपीज के हिसाब से 500 रुपीज। और दूसरे वाले का नाम क्या है, द सेकेंड बंदे का क्या नाम है, दैट इज अ गिरधर। गिरधर अच्छा इंसान था, गिरधर अ पर्सन हु हैव अ 300 शेयर, उसके पास 300 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल के साथ क्या किया, फाइनल कॉल का भी पैसा दिया, यानी 3 रुपए दे दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। किसके साथ किया उसने कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया, विथ फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के साथ उसने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। कितने शेयर पे, 300 शेयर पे, ठीक है, 300 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 900 रुपीज एडवांस, फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, और एरियर भी किस पे, फर्स्ट कॉल पे। तो जब हम एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल की, एंट्री नंबर 7, सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ओके, फर्स्ट कॉल के सामने कितना लिखेंगे, 2,50,000, ओके, एंड यू नो वेरी वेल, इसमें एरियर भी हुआ है, एरियर कितना हुआ है, 500, तो कॉल्स इन एरियर, एरियर कितना हुआ है, 500, एडवांस कितना हुआ है, 900, कॉल्स इन एडवांस 900, एंड प्लीज लिसन केयरफुली, यही बात नहीं खत्म हो रही, आपको याद होगा ये वाली एंट्री अलॉटमेंट वाली, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ है, कितना रुपए क्रेडिट हुआ है, 3200 रुपए, जिसमें 3,000 रुपए किसका है, फर्स्ट कॉल का, और 1,200 रुपए किसका है, फाइनल कॉल का। यानी इस 3200 में 2,000 रुपए फर्स्ट कॉल का है और 1,200 रुपए किसका है, फाइनल कॉल का है। तो 2,000 किस टाइम डेबिट होगा, यहां डेबिट होगा, ठीक है, और 1,200 किस टाइम डेबिट होगा, यस, फाइनल कॉल के टाइम। तो 2,000 यहां डेबिट हो गया, अब इसमें 1,200 बचा होगा, 1,200 एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल रिसीव के टाइम डेबिट होगा। तो एडवांस में कितना हुआ, 2,000, सो यू कैन सी दैट 2,50,000 में 2,000 पहले ही मिल चुका है, यानी कंपनी को मिलना कितना चाहिए था, 2,48,000। यहाँ मैंने एक गलती और की है जो आप नहीं ध्यान दे रहे हो, वो गलती ये है
कि सर बिफोर द फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के पहले आपने 400 शेयर 200 शेयर फॉरफीट भी किया है, आपने 200 शेयर फॉरफीट किया तो 50,000 शेयर पे पैसा नहीं मांग सकते। कंपनी ने, अभी मैं जस्ट बोल ही रहा था स्टार्टिंग में कि कंपनी ने क्या किया है, 200 शेयर क्या कर लिया है, फॉरफीट कर लिया है। तो कंपनी कभी भी पूरे शेयर पे पैसा नहीं मांगेगी, सिर्फ कितने में मांग पाएगी, यू नो वेरी वेल। अगर हम 50,000 शेयर इशू किए हैं, उसमें से 200 शेयर फॉरफीट कर लिए, तो कंपनी अब कितने पे शेयर पैसा मांगेगी, 49,800। तो ये भी मिस्टेक हुई है, 49,800, 49,800। तो प्रीमियम का कितना होगा, 49,800, और शेयर कैपिटल के सामने होगा दैट इज 1,99,200, और शेयर फर्स्ट कॉल के सामने होगा 2,49,000। तो कंपनी कितना रुपीस मांगेगी, 2,49,000। ओके, अब यहां देखो 900 एडवांस हो गया, 2,000 तो पहले ही मिल गया। अब आप यहां वर्किंग करके देख लो खुद ही, कंपनी ने 2,49,000 का फर्स्ट कॉल मांगा, जिसमें से 2,000 पहले ही मिल चुका है, तो 2,000 माइनस कर दो, ठीक। तो इतना कंपनी को नहीं मिलेगा, यानी कंपनी को कितना मिलना चाहिए, 2,47,000 पहले, मतलब ये वाला मिला हुआ था। अब ये देखो कि 900 रुपए उसे फाइनल कॉल का भी मिल गया, तो 900 रुपए ऐड कर दो, और 500 रुपए एरियर हो गया, 500 मतलब मिला ही नहीं, 500 घटा दो, सिंपल सी बात है। तो आएगा क्या, 2,47,000, यस 400, 2,47,400 रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, क्वेश्चन को हम जैसे जैसे क्रिएटिविटी के साथ सॉल्व करते जाते हैं, क्वेश्चन में आप क्या करते हो, सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो आप खुद देख लो, मैंने एंट्री नंबर क्या कर ली, 4 की, 5 की, फर्स्ट कॉल डिमांड की, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव किया। फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय बस हमें ये याद रखना है कि हमें जो भी पैसा रिसीव करना है, ठीक है, उसे बहुत ही केयरफुली रिसीव करना है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल आपको एरियर भी हुआ है, एडवांस भी हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कॉल में पैसा कम भी हुआ है, क्योंकि 200 शेयर आपने फॉरफीट कर लिया था, और पहले का कुछ एडवांस मिला हुआ है, वो भी आपको एडजस्ट करना है। आने वाला एडवांस भी है, और किसी ने 2,000 रुपए पहले से फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे स्टार्टिंग में, तो यू कैन सी दैट दो लोग थे ना स्टार्टिंग द क्वेश्चन, यस, क्या नाम था, माधव। माधव ने 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल जब हम रिसीव करेंगे, तो उसका तो ऑलरेडी मेरे पास पैसा आ चुका है 2,000 रुपए, तो वो फिर से तो देगा नहीं। और अब ये 900 रुपए जो एडवांस मिला, यानी फाइनल कॉल के टाइम कितना एडजस्ट होगा, 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज किसका, माधव का, और 900 रुपीज किसका, गिरधर का। और अब क्या करना है, यू नो वेरी वेल, अब हमें क्या करना है, फॉरफीट करना है। किसके शेयर को फॉरफीट करना है, कृष्णा के शेयर को। कृष्णा ने क्या किया, एरियर किया। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, लिखा हुआ है, कृष्णा शेयर वेयर फॉरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ओके, कृष्णा शेयर इमीडिएटली फॉरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मैं लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन आप देख लो, फेल टू फर्स्ट कॉल मनी, गिरधर द होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, कृष्णा शेयर वेयर फॉरफीटेड इमीडिएटली। कृष्णा के शेयर को इमीडिएटली फॉरफीट कर लो। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है, बिकॉज यू नो वेरी वेल, प्रीमियम का पैसा तो मिला नहीं होगा, और जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होता है, तो आपको पता है कि एंट्री क्या होती है, सेम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉस्ट इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ओके, so before the starting the entries related to the forfeiture, I want to request to all the student, please copy all the entries in your copy properly. That is the entries related to the फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड दी एडजस्टमेंट जो मैंने अभी किया था, उसको फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके आप देख लो, ठीक है। सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर फ्यूचर की एंट्री जो आपको करनी है, किसके शेयर को फॉरफीट करना है, जिसने एरियर किया है यहाँ पे, जिसके पास 100 शेयर था। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, कर दूं, चलिए कर देता हूं। तो एंट्री नंबर कौन सी होगी, एंट्री नंबर होगी 8। एंट्री नंबर 8 है,
फॉरफीचर ऑफ शेयर ऑफ दूसरे वाले का क्या नाम था, दूसरे वाले शेयर होल्डर का नाम था, दैट इज गिरधर, सॉरी कृष्णा, कृष्णा के शेयर को फॉरफीट करना है। फॉरफीचर की एंट्री वही होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फॉरफीचर। सेम एंट्री होगी जैसे पहले होती थी, जैसे इसकी हुई थी पहले वाले की, तो उसको भी हम फिर क्या करेंगे, अगेन दूसरे शेयर होल्डर को फॉरफीट करेंगे। 4, 5, 6, 7 एंड 8 नंबर एंट्रीज। हाउ मेनी शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, 100 शेयर कृष्णा ने के फॉरफीट करने हैं, और फॉरफीचर पे शेयर की वैल्यू कितनी है, यू कैन सी दैट 2, 3, 5, 4, 9 रुपीज ही तो क्वालिटी क्या था, 9 इंटू 100 इक्वल्स टू 900। प्रीमियम का पैसा कौन सा नहीं दिया, एप्लीकेशन तो दिया है उसने, अलॉटमेंट पे दिया है, फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया नहीं, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, यानी 100 रुपए, 1 रुपए एक शेयर पे। और कॉल्स इन एरियर, एरियर कितना हुआ है उसका 500 रुपए, तो एरियर अगर 500 है तो फॉरफीचर भी वैल्यू कितनी होगी 500 होगी। Okay, so please note down this entry in your copy. In the next video I will come to you with the whole solution of this question. Thank you. So I hope today we clear all the topics very easily. आज के लिए इतना ही, thank you, thanks a lot.